कोचिंग, गाइडेंस, मेंटोर करना स्टूडेंट्स को, मतलब ये कहाँ से आ रहा है? जब भी मैं लोगों को सिखाता हूँ तो किसी भी लोगों के पर्सनल गोल नहीं होते हैं, पर्सनल उनको लाइक डेली इंटेंशंस नहीं होता, जस्ट दे आर लिविंग देयर लाइफ इन फ्लो। सक्सेस कम विथ डिस्कम्फर्ट, नॉट कम्फर्ट। जब तक हम अपनी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करेंगे तब तक वी कैन नॉट मैनिफेस्ट। 90% से ज़्यादा लोग आज मेंटल हेल्थ के शिकार हैं। एक्सपेक्टेशंस पे अटैच वही होते हैं लाइक जो खुद में वो हील्ड नहीं है। सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ डेवलपमेंट एक्चुअली होता क्या है? अगर मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन, एंगर एंड जेलसी है तो मैं सामने वाले को भी वही दूंगा। Anyone who wants to start their journey with the self development and self identification, तो कैसे स्टार्ट करें? मैं कमा रही हूँ 20,000 रुपये पर मुझे कमाने अब 50 है, तो वो कैसे करना है? वो जंप कैसे लेनी है? किसी भी चीज़ की कोई लिमिटेशन नहीं होती है। लिमिटेशन सिर्फ एक चीज़ का होता है, हमारे माइंड का। Hi everyone, welcome back to the Skills at School. As I always say, this is that one school you never knew you needed. So when I talk about the Skills at School, or when I talk about skills, I always do not mean skills like, something which is there in the books or whatever we have learned so far. कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे उस्ताद वाला टाइटल हम लोगों ने बहुत सुना है ना. But I don't think life works like that way, even if you study from books या हम knowledge cram कर ले, रट्टा लगा ले. There are a lot of other aspects where we need guidance. We seek mentorship, be it in terms of, the relationships that you make in life, be it in terms of the corporate that you enter and then, you don't know how to behave with your colleagues or seniors, be it in terms of your personality, be it in terms of, your interview skills or how to present yourself, or be it in terms of, let's say, nowadays we also call it manifestation, although I do not like to call it manifestation because मुझे लगता है, we all have that energy of attracting inside, right? Something is there inside our own body. But the guest that we have today is not just somebody who sticked to a corporate identity or a job, started his own venture, his own business, is getting into all that also. But apart that, he got into these life skills so that you people can actually learn about these life skills and he can guide you through life. So, there are a lot of titles that I can give it to him, but I won't actually give him a title. I'll say he's a full package that you'll see in the whole podcast, and it's none other than Omkar Tiwari. So first of all, Omkar, I welcome you to Skills at School, and I'm really excited. How are you feeling? So I'm feeling superb, and first of all, thank you so much for having me on this podcast. And I'm feeling very excited. I can see that on your face. I would like to start the podcast with one simple, question. Why? Why, ऐसे दिखाने के लिए बहुत अच्छी लाइफ है, नौकरी लग जाती है. इसी के लिए एक्चुअली हम लोग सब करते हैं, है ना? We all started from this point. Yes, मतलब हमें बचपन से ये सिखाया गया कि अच्छी नौकरी लग जाएगी, फिर मजे आ जाएंगे and all of that, सब कुछ ठीक हो जाएगा. But then आपके पास जॉब थी, then you got into business. चलो एक बार को वो भी समझ आता है कि you wanted something of your own. But getting into coaching, guidance, mentor करना स्टूडेंट्स को, मतलब ये कहाँ से आ रहा है? So actually it's all started 2 years back. जहाँ पे it was my very dark phase of my life. Okay. जहाँ पे I had some personal issues, जहाँ पे सारी चीज़ें हो रही थी. And वहाँ से सब चीज़ start हुआ. Till then I was also normal guys कि ठीक है, जॉब लग गई है, अच्छी जॉब चल रही है, अब जॉब में ही ग्रोथ करना है. मुझे ये कोर्स करना है, फिर आगे इतनी पैकेज बढ़ेगी, डेली एवरी ईयर्स इतना हमारा हाइक मिल जाएगा और जॉब चलती रहेगी. बट 2 years back something happened. I lost someone whom I loved the most, and it was like emotional trauma. And just उससे बाहर निकलने के लिए बहुत सारी चीज़ें मैंने करी एंड वहाँ से सब कुछ स्टार्ट हुआ. इन बिटवीन मैंने इतनी सारी चीज़ें करी अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए सेल्फ डेवलपमेंट में. एंड उसी टाइम पे मुझे ये भी पता चला कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट और सेल्फ डेवलपमेंट क्या होता है, राइट. एंड वहाँ से मैंने लाइफ के हर एक एरियाज में फिर इम्प्रूवमेंट स्टार्ट किया. एंड एट दैट टाइम व्हेन आई वाज इन पेन, सो उस टाइम पे मुझे लगा कि यस, देयर आर मेनी पीपल्स इन दिस फेस जो डेली ये सब चीज़ों को फेस कर रहे होंगे, राइट. दे आर फाइटिंग देयर ओन बैटल साइलेंटली. एंड
उस टाइम से फिर मुझे लगा कि ठीक है, अगर मैं ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, मैं इससे ओवरकम कर सकता हूँ, तो मैं लोगों को मेंटर भी कर सकता हूँ। एंड उस दिन से फिर मैंने लाइफ का एक मिशन बनाया, बिकॉज जब मेरे मेंटर बोलते थे कि उनका जॉब सब लोग कर रहे हैं, सब लोग अपनी लाइफ जी रहे हैं, बट एज ए पर्सन वी नीड टू लाइक वी मस्ट हैव अ पैशन एंड पर्पस ऑफ लाइफ, राइट। एंड वहाँ से फिर मुझे स्टार्ट हुआ कि नहीं, अब मेरी लाइफ का भी कुछ पर्पस होना चाहिए। आई वांट टू इम्पैक्ट पीपल एंड मुझे भी लोगों को मेंटर करना है जो भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे, स्पेशली यूथ। एंड वहाँ से सब चीज़ स्टार्ट हुई। दैट्स सो ग्रेट टू न्यू। ये हम लोग सब ना एक लूप में घूम रहे हैं, लाइक द सेम लूप, जॉब चाहिए, हाइक चाहिए, अप्रेजल चाहिए। बट क्योंकि आपने बोला कि जब आपने अपना सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ डेवलपमेंट शुरू किया तब आपको बहुत सारी चीज़ें पता चली। विल गेट इनटू बहुत सारी चीज़ें, बट आई वुड लाइक टू रियली स्टार्ट कि सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ डेवलपमेंट एक्चुअली होता क्या है, बिकॉज मुझे नहीं लगता कि हमें पता भी है या कोई बताने वाला भी था कि ऐसा कुछ होता भी है। सो सेल्फ अवेयरनेस इज नथिंग बट इट्स नोइंग योर सेल्फ, राइट। कि आपके पैटर्न्स क्या हैं, आपके ट्रिगर्स पॉइंट्स क्या हैं, आपके कितनी इमोशनली आप वीक हो या स्ट्रांग हो। इट्स ऑल अबाउट नोइंग योर सेल्फ, राइट। कई बार क्या होता है कि हमें खुद पता नहीं होता, हम जस्ट कर रहे होते हैं। बचपन से, चाइल्डहुड से हमारे वो पैटर्न डेवलप हो जाते हैं, जो भी हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे रिलेशंस, उन सब के द्वारा हमारी आइडेंटिटी शेप हो जाती है। एंड हम जस्ट उस आइडेंटिटी को जी रहे होते हैं, राइट। इट्स नॉट आवर ओन आइडेंटिटी, इट्स अडेप्टेड फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट। एंड वो सब लाइफ को लेके हम आगे बढ़ रहे होते हैं। एंड जब हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी में जाते हैं तब हमें पता चलता है लाइक हु एम आई, लाइक हु इज ओमकार। एंड वहाँ से फिर हम जो हार्ड क्वेश्चन हम शायद कभी लाइफ में नहीं किए होते हैं, हम वहाँ से करना स्टार्ट करते हैं, लाइक व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट्स द पर्पस ऑफ माई लाइफ, where my, like if I am doing these things for 5 years and I will do these things in ahead like 5 years, so where I will go, right। अगर मैं ये कंटिन्यू ये सारी चीज़ें 5 साल तक करता रहूँगा तो मेरी लाइफ कहाँ जाएगी, लाइक मेरा फ्यूचर सेल्फ मुझे क्या बोलेगा, राइट। मैं अपनी फ्यूचर रियलिटी कैसे क्रिएट करना चाहता हूँ। तो ये सब चीज़ें हम पहले जानते ही नहीं, हम जस्ट जी रहे होते हैं। लाइक जब भी मैं लोगों को सिखाता हूँ तो किसी भी लोगों के पर्सनल गोल नहीं होते हैं, पर्सनल उनको लाइक डेली इंटेंशंस नहीं होता, जस्ट दे आर लिविंग देयर लाइफ इन फ्लो, कि आज हम उठे और जो भी हमारी लाइफ में आगे से आगे चीज़ें हम करते गए एंड दैट्स ऑल। तो सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी में हमारा ये होता है कि हम अपने ट्रिगर्स को जानते हैं, हम अपने आप को फाइंड करते हैं, अपने गोल्स को फाइंड करते हैं एंड एक स्ट्रक्चर्ड वे में हम अपनी लाइफ को जीते हैं, जहाँ से हमें लगता है कि यस, हम अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं। हम like we can create our own life reality, right। and I always says there is no destiny, right। it's always 80% our works and 20% destiny। यू नो ओमकार, मुझे ना यहाँ पे 2 चीज़ें पूछनी है आपसे। यहाँ से मेरा सेगमेंट 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहली चीज़, जब आपने मुझसे सारे सवाल करे, एज अ पर्सन हमें सच्ची नहीं बताता, बिकॉज आई फील लाइक मैं बहुत नम हूँ इन सब चीज़ों को लेकर। और मेरे को लगता है जो लोग सुन भी रहे होंगे ना, वो भी काफ़ी रिलेट कर पाएंगे कि अरे ये क्या पूछ लिया, इसका तो जवाब ही नहीं पता हमें, ये कहाँ से। पर बिफोर आई आस्क यू कि ये सारे क्वेश्चंस यू नो जो ये नमनेस है वो कैसे ठीक करना है, उससे पहले मुझे ये पूछना है कि आपको क्यों लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट है। मतलब क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि वी पीपल आर नॉट लिविंग, मतलब खा रहे हैं, सो रहे हैं, पी रहे हैं, हमें लगता है कि लाइफ तो यही थी, या लाइफ तो हमें यही सिखाई गई थी जितना हमें पता है। वी डोंट सी लाइफ इसके बाहर। तो बिकॉज आपने वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ अवेयरनेस वाली जर्नी जी है, तो आप किस तरीके से देखते हो कि व्हाई डू यू फील लाइक दिस इज इम्पॉर्टेंट, और क्यों सबको ये हार्ड क्वेश्चंस के जवाब देने चाहिए, क्योंकि हम इतना भागते हैं इन हार्ड क्वेश्चंस से, क्योंकि इनके जवाब नहीं है हमारे पास। एंड इसको मैं आंसर करूँगा बाद में। इसका एक मैं पहला एग्जांपल देता हूँ। लाइक एक मेरी कम्युनिटी में एक स्टूडेंट है, ठीक है, एंड डेली मैं उसको बोलता था कि आपको जर्नलिंग करना है, राइट। कुछ दिनों के बाद हम बोलते थे कि लाइक आपने जो भी सुबह पहले आपको अपना गोल सेट करना है होल डे का, लाइक हाउ यू वांट टू स्पेंड दिस डे, आज आप दिन को कैसे यूज करना चाहते हो। एंड आपको गोल टॉप 3 गोल्स लिखने हैं आज डे के, एंड इंटेंशन सेट करना है कि लाइक आप कैसे फील करना चाहते हो आज, ठीक है। एंड उसके बाद रात में आके आपको जर्नलिंग करनी है, उसको रिव्यू करना है, लाइक जिस हिसाब से आपने डे को प्लानिंग किया था, जो भी आपने गोल सेट किया था, आपने उसको अचीव किया या नहीं किया, आपने उसके अकॉर्डिंगली एक्ट किया या नहीं किया, क्या आपने अच्छा किया, क्या आप और कल इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है। सो वो स्टूडेंट सुबह जैसे करके मुझे गोल्स तो भेज देता था, ठीक है, बट
वो रात में नहीं करता था। 2 दिन 3 दिन के बाद मैंने उससे पूछा कि लाइक वाई यू आर नॉट सेंडिंग दिस ऑल थिंग्स। तो बोल रहा है कि सर जब भी मैं ये लिखने बैठता हूँ ना तो मुझे डर लगता है, मुझे भागना है इससे, मतलब मुझे लगता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ और ये सब क्वेश्चंस मुझे बहुत ज़्यादा हिट करते हैं, प्रेशर भी देते हैं। यस, कि अभी क्या है कि लोग अनइंटेंशनली जी रहे हैं, लाइक उनकी लाइफ में वो एक वे लाइक विशफुल लाइफ है, विशफुल थिंकिंग है कि एक दिन ऐसा हो जाएगा, एक दिन ऐसा होगा तो मैं ऐसा कर लूंगा, राइट। बट दे डोंट नो कि आप अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। वी ऑल हैव वेरी लिमिटेड टाइम्स, राइट। एंड अगर आप इफ रियली वांट टू डू समथिंग बिग इन योर लाइफ, that you have to ask these hard questions to yourself, and that's the purpose of your life, right? क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ सोने और खाने के लिए तो पैदा नहीं हुए हैं ना, हमारे पेरेंट्स ने इतना किया है। If you truly wants to improve your life, to achieve something in your life, to make your parents proud about yourself, तो आपको ये सारे hard questions करने पड़ेंगे। At the moment you feel comfortable with these hard questions, your life will change completely. पर ओंकार, जैसे आपने बोला कि प्रेशर आता है, डर लगता है, ऐसे ही जब वो जर्नलिंग पे हमने लिख दिया और हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो गिल्ट भी आता है। यस, गिल्ट आता है। तो इन सब चीज़ों से कैसे बाहर निकले हैं? क्योंकि इनमें ये भी एक लूप है, मतलब मैं सुबह लिख लूँगी चाहे, पर आते आते फिर वही हो जाएगा और फिर अगले दिन मेरा ना सुबह लिखने का भी मन नहीं करेगा क्योंकि मुझे पता है कि मुझसे हो तो रहा नहीं है। और आपको मैं गिल्ट के साथ साथ बताती हूँ, कई लोग, अब तो खैर हम लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं कि डिप्रेशन बहुत आसानी से हम लोग बोल देते हैं, हाँ, बट लोगों को एंग्जाइटी होती है, ऐसा हाँ, नहीं है कि नहीं होती है। और जैसे आपने बोला ना कि ये सारे चैलेंजेस जो आपकी लाइफ में भी रहे, सब फेस करते हैं कहीं ना कहीं, पर हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि खुद से भी ना एक्सेप्ट करके फिर हमें लगता है कि अच्छा फिर क्या ही होगा। तो वी रियली वांट आंसर्स टू दोज क्वेश्चंस। यस। सो इसके लिए मैं बोलूँगा कि सी, आप अगर क्वेश्चन से भागोगे तो ऑलवेज वो तो आप भागते ही रहोगे, राइट। कब तक भाग सकते हैं हम? तो एक ना एक दिन आपको उस डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। एंड एक बार आपको मे बी 1 day 2 day 3 days तक आपको प्रॉब्लम होगी, बट वही चीज़ें आपकी लाइफ को चेंज भी करती हैं। एंड सक्सेस कम विथ डिस्कम्फर्ट, नॉट कम्फर्ट, राइट। तो वो डिस्कम्फर्ट हमें कुछ दिन फील करना पड़ेगा। एंड आवर माइंड्स वर्क लाइक दिस, राइट। आवर माइंड्स ऑलवेज ट्राई टू कीप आवर सेल्फ इन कम्फर्ट जोन, राइट। तो वो नहीं चाहता कि आपको कोई भी डिस्कम्फर्ट करे। एंड दैट्स द पावर ऑफ माइंड सेट, कि आप उसको कैसे ट्रेन कर रहे हो। यू नीड टू ट्रेन योर माइंड सेट, यू नीड टू रीवायर योर माइंड सेट सो दैट योर माइंड्स वर्क इन योर फेवर्स, राइट। और वो चीज़ें आओगी कि जब आप उससे बैठना स्टार्ट करते हैं, जब वो धीरे धीरे आप उसको करना, लाइक इसमें हमें कोई गिल्ट फील करने वाली बात नहीं है। आप 1 दिन 5 दिन कर रहे हो, नहीं हो रहा है, दैट्स ओके। एटलीस्ट आप उसके साथ कंफर्टेबल तो हो। 5 दिन तक अभी तक आपने पूरी लाइफ में नहीं किया, तो एकदम से हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि 1 दिन में ही हो जाएगा या हम 5 दिन में तुरंत करने लगे। वो प्रोसेस है, आपको देना पड़ेगा। उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि आप ओके हो जाओगे उसके साथ। तो जैसे आपके पास भी कई स्टूडेंट्स होंगे ना जिनको ये प्रॉब्लम होगी, तो हमने हाँ, उनको कैसे डील किया आपने? उनको लाइक काफ़ी समझाना पड़ता है, उनको काफ़ी सारे एग्जांपल्स देने होते हैं, है ना। एंड कुछ दिनों तक उस चीज़ को वो नहीं करते हैं, बट मैं बोलता हूँ कि ठीक है, आपने आज लिखा, रात में आपने जर्नलिंग की, नहीं किया, दैट्स ओके। गिल्ट नहीं फील करना है आपको, अगेन फिर सेम डे करना है, ठीक है, सेम रूटीन आपको करनी है। उस दिन भी आप नहीं करते हो, खुद को लाइक कोसना नहीं है, खुद को गिल्ट फील नहीं कराना है, खुद को निगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करना है आपको। जस्ट लेट इट गो, ठीक है, लेट गो करो उसको आप, अगेन आप प्रोसेस करो। एंड आफ्टर सम डे यू विल feel comfortable with those question and you will act like that, right. and इसमें हम एक और टेक्निक्स का यूज करते हैं, like visualizations, that is very powerful techniques, है ना, जहाँ पे हम उनको विजुअलाइज कराते हैं कि like अभी आप अगर ऐसे कर रहे हो, so imagine कि आप सेम काम कर रहे हो, तो 5 साल बाद 2 साल के बाद आपकी लाइफ कैसे जाएगी, कैसी रहेगी, तो क्या आप ऐसी लाइफ चाहते हो? वो बोलते हैं कि नहीं। सो इमेजिन करो कि आप अपनी लाइफ कैसे चाहते हो, आज से 2 साल के बाद आप अपने आपको कैसे देखना चाहते हो, हाउ यू टॉक, हाउ यू वॉक, हाउ यू ड्रेस, लाइक कितना मनी आपके अकाउंट में होना चाहिए। फिर जब वो लोग इमेजिन करते हैं तो दे फील वेरी लाइक कनेक्टेड कि यस मुझे चाहिए, एंड फॉर दैट आई नीड टू एक्ट टूडे। तो वो फिर धीरे धीरे लोगों के मेंटल उसमें चेंज आता है, मेंटल थिंकिंग में, एंड दे थिंक लाइक दैट। फिर धीरे धीरे वहाँ से सी, इट्स ऑल अबाउट आइडेंटिटी शिफ्टिंग, राइट।
जब तक हम अपनी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करेंगे तब तक वी कैन नॉट मैनिफेस्ट, वी कैन नॉट चेंज आवर रिजल्ट, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। बिकॉज अगर आप अभी से 20 साल 15 साल पहले की आइडेंटिटी के साथ आप डेली जी रहे हो, सो योर बॉडी एंड योर एक्शन विल वर्क इन दैट वे ओनली, राइट। सो अगर आप चाहते हो कि आज से 5 साल के बाद मुझे सीईओ बनना है, तो आज से आपको सीईओ जैसा एक्ट करना पड़ेगा। आपकी आइडेंटिटी सीईओ वाली बनानी पड़ेगी। हम एक मजदूर की आइडेंटिटी के साथ सीईओ नहीं बन सकते हैं, है ना। और वो आइडेंटिटी आप, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं ना कि एक दिन मैं सीईओ बन जाऊंगा तब मैं सीईओ जैसी लाइफ जीऊंगा, राइट। कि एक दिन मेरे पास पैसे आ जाएंगे तब मैं अच्छे कपड़े लूंगा, फिर ये फोन लूंगा, ये घड़ी लूंगा, सारी चीजें हम करते हैं। बट दैट्स नॉट अ लाइक राइट अप्रोच, है ना। हमें पहले वो सारी आइडेंटिटी अपने में लानी पड़ेगी। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मुझे आर्मी में जाना है, राइट, तो मैं ये सोचूं कि जिस दिन मैं आर्मी में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, उस दिन मैं आर्मी की जिंदगी जीने लगूंगा। सो वो बहुत गलत पहले करनी पड़ती है। तो पहले आपको पहले ही आर्मी की तरह जीना पड़ेगा। लाइक कि आप एक आर्मी की रूटीन क्या होती है, कितने बजे आपको उठना है, कितना रनिंग करना है, क्या डाइट लेनी है, फिर कैसे आपको ट्रेन करना है। एंड वंस यू फॉलो दिस ऑल थिंग्स, योर आइडेंटिटी बिकम्स आर्मी। और आपके पर्पस वो नहीं होना चाहिए कि ठीक है आपके आर्मी में सिलेक्शन होगा तभी आप करोगे, राइट। आर्मी अगर आपका सिलेक्शन नहीं भी होता है तो यू लिव विद दैट आइडेंटिटी, एंड इट्स वेरी लाइक लेस चांसेस कि अगर एक बार आपकी आइडेंटिटी बन गई तो आप नहीं जाओगे, है ना। तो हमें उससे कनेक्टेड नहीं होना है, अटैच नहीं होना है, बट आइडेंटिटी शिफ्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो यू हैव टॉक्ड अबाउट विजुअलाइजेशन। यहाँ पे जब आप आइडेंटिटी शिफ्ट की बात करते हो, हम विजुअलाइज कराते हैं लोगों को एंड ऑल ऑफ दोस स्टफ। फिर आपने बोला कि मैनिफेस्टेशन नाम की भी, पर सेकेंड पार्ट ऑफ इट, जैसे एक पार्ट तो हमने डिस्कस किया जिसमें हमने ये बोला कि लोगों से हो नहीं पा रहा। एक पार्ट है जहाँ पे लोग जर्नल कर पा रहे हैं, लिख भी रहे हैं। मतलब आपको बताऊंगी 369 मेथड, लिखे जा रहे हैं, मतलब इतनी सारी टेक्निक्स है और फिर भी चेंज नहीं हो पा रहा है। तो आपको क्या लगता है वो लोग क्या गलतियां कर रहे हैं, क्यों हो रहा है उनके साथ ये? इसमें क्या होता है ना कि आप एक दिन तो कर रहे हो, राइट। हम क्या करते हैं कि 1 घंटे सुबह मेडिटेशन हमने किया, विजुअलाइज किया, सेल्फ टॉक किया, अफर्मेशंस लिख लिया, बट आप बाकी 23 घंटे क्या कर रहे हो ना। तो इट्स अबाउट लाइक कि हमने वो सांप सीढ़ी वाला खेल खेला है ना, कि आप एक सीढ़ी से ऊपर जाते हो, ठीक है, एंड फिर वहां पे आपको सांप वो स्नेक डंक करता है, फिर आप बैक टू जीरो आ जाते हो, है ना। तो इट्स वही है कि अगर आपने अफर्मेशन लिखा, 369 टेक्निक्स फॉलो किया, विजुअलाइजेशन किया, सब कुछ किया, बट कुछ ट्रिगर्स आए, कुछ आपकी लाइफ में कुछ डाउनफॉल आए, कुछ ऐसी लाइक अनवांटेड चीजें हुई, एंड फिर आप वहां पे सब कुछ, आप सारी टेक्निक, सारे पॉजिटिव टॉक, सारी अफर्मेशन, सब कुछ भूल के आप फिर अपने आप को उसी जोन में लेके चले गए, तो आप अगेन बैक टू जीरो। अगर आपकी पूरी लाइफ वही ऊपर नीचे उतने में ही आपका लूप बना रहता है वो। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लाइक, और दैट इज द आइडेंटिटी शिफ्टिंग, राइट। कि अगर एक बार आपने अफर्मेशंस किया, एक सर्टेन लेवल पे आप पहुंच गए, मान लो आप 0 से 3rd पे पहुंच गए, तो अब यूनिवर्स या जो भी बोल लो, गॉड आपका अगर वहां पे कोई टेस्ट ले रहा है, लाइक कोई भी फेलियर आ रहा है, तो आपको भी तो वहीं पे खुद को ट्राई करना है ना कि मैंने जितनी भी अभी इम्प्रूवमेंट करी है, वो क्या मैं उसको अप्लाई कर भी पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बोलने के लिए डेली बोल रहा हूँ कि यार हमें गुस्सा नहीं होना है, मुझे हमेशा पॉजिटिव रहना है, लेकिन जैसे ही सामने बॉस ने बोला सब भूल के आराम शुरू हो गया, है ना। तो वो वाली बात है फिर। हाँ, जैसे आपने ये बात बोली थी कि बीच में कि ट्रिगर्स हमारे सामने आ रहे हैं, तो ट्रिगर्स का पता होना भी तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पैटर्न्स, ट्रिगर्स, हमारी आइडेंटिटी क्या है, किसी से बोरोड है, ये सब चीज़ें हम पता कैसे लगाएंगे? इसके लिए अगेन आपको उन सारे हार्ड क्वेश्चन के साथ बैठना पड़ेगा, है ना, जिससे आप इस चीज़ का पता लगा सको। एंड हर एक आदमी का एक पैटर्न होता है, राइट। हर एक आदमी के ट्रिगर्स होते हैं, एंड देयर आर पीपल, मैंने सुना है जो ये बोलते हैं, लाइक बहुत सारे कॉमन कहावतें हैं अपने यहाँ पे, फ्रेजेस हैं कि लाइक सिग्नेचर नहीं बदलता है, नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता है, राइट। एंड पीपल आर लिव विद दैट लिमिटेड बिलीव्स एंड थॉट्स, राइट। एवरीथिंग कैन चेंज, है ना। इफ यू वांट टू रियली चेंज समथिंग इन योर लाइफ, यू कैन चेंज, राइट। बट लोगों का, मैं हमेशा बोलता हूँ कि लाइक 90% से ज़्यादा लोग आज मेंटल हेल्थ के शिकार हैं, उनको इवन पता भी नहीं है, राइट। अगर एक फैमिली है, एक वाइफ है, उसका हस्बैंड अब्यूजिव है, बहुत सारे उसके गलत पैटर्न्स हैं, डेली उसका पैटर्न है कि अगर आपने ये बोल दिया तो उसका पैटर्न है कि वो यही रिप्लाई करेगा या आपके ऊपर वो
हाथ भी उठा सकते हैं या गाली भी दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं वो, राइट। तो सब चीज पैटर्न है, बट पीपल आर एक्सेप्ट कि ये तो यही ऐसे ही है ना। उसने भी एक्सेप्ट कर लिया कि यार मुझे तो गुस्सा ही आता है, हाँ, मैं तो ऐसे ही हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ, हाँ। है ना। तो उनको ये नहीं पता कि दिस ऑल आर मेंटल डिसऑर्डर्स, लाइक हम अपने यहाँ पे साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाते हैं। बॉडी में अगर हमें प्रॉब्लम होगी हम डॉक्टर पर जाएंगे, लेकिन मेंटल हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम है तो हम नहीं जाते हैं, है ना। जब आप साइकेट्रिस्ट के पास जाओगे, साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे, तो आपको पता चलेगा कि आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, है ना, आपके पैटर्न्स ऐसे क्यों हैं। हो सकता है आपके बॉडी में कुछ केमिकल हार्मोन्स की इम्बैलेंस हो, डोपामिन का कुछ ऐसा हो, सेरोटोनिन लेवल आपका लो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। हो सकता है आपका डाइट सही नहीं हो सकता है कि आप शुरू से ही ऐसे माहौल में बड़े हो, राइट। आपने ऐसी फैमिली में ही जहाँ पे ऐसे कपल्स होते थे, आपके माँ बाप को आपने ऐसे ही बड़े होते देखा है, बहुत सारे आपके लाइक चाइल्डहुड ट्रॉमा हो गए हैं, है ना। तो वो सब चीज अगर आपने देखते हुए बड़े हुए हो तो आप वैसे ही एक्ट करोगे। जब भी आप वैसे एक सिचुएशन में जाओगे, ऑटोमेटिकली आप सबकॉन्शियस में जो आपके स्टोर्ड है आप उसके अकॉर्डिंगली एक्ट कर लोगे। तो दिस मतलब ऐसे कोई पैटर्न देखा है आपने, कोई एग्जांपल है आपके पास जो आपने देखा हो कि ऐसा उनके साथ हुआ और फिर सेम एग्जैक्ट उन्होंने बिहेव किया हो? यस, जैसे अगर मान के चलो कि एक लड़का है, हाँ, है ना, वो हमेशा से ये बचपन में अगर उसको इग्नोर किया गया है, राइट, कि एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि बचपन में क्या करते हैं कि हम जब छोटे होते हैं कुछ भी हमें पेरेंट्स से चाहिए होता है, हम क्या करते हैं, रोने लगते हैं कि हम रोने लगेंगे हमें चीजें मिल जाएंगी, हाँ। ठीक है। धीरे धीरे क्या होता है कि जब हम बड़े होते हैं कुछ दिनों तक हमें तो वो रोने से चीजें मिल जाती है, बट बाद में क्या होता है, वही बिहेवियर आपका, आप अगर किसी रिलेशनशिप में आते हो, ठीक है, और वहां रिलेशनशिप में आने के बाद कुछ चीजें आप मांग रहे हो, डिमांड कर रहे हो, राइट, रिलेशनशिप में, वहां पे आपको नहीं मिलता है, तो अगेन वो आपका वो वाला पैटर्न के यहाँ पे भी आएगा कि आप फिर रोना शुरू कर दोगे, आप फिर इनसिक्योर फील करोगे, आप बेगिंग करने लोगे, प्लीडिंग करने लोगे, लाइक दिस इज वेरी कॉमन, है ना। सेम अगर मान के चलो कोई बच्चा अगर बचपन से ऐसे देखते आ रहा है कि मेरे पापा मम्मी को ऐसे ट्रीट कर रहे हैं, है ना, तो वो वही देखते हो, उसको ये लगेगा कि यस ये मारना पीटना गाली देना ही प्यार है। एंड ऑफ कोर्स मैंने बहुत लोगों का, आपने भी सुना होगा, जो लोग बोलते हैं कि लाइक जिसके बीच में जितना प्यार होता है उतना भी झगड़ा होता है। सो दीज ऑल आर पैटर्न्स, है ना, कि हमें लगता है कि हाँ ये तो ऐसे ही है, मतलब प्यार है तो झगड़ा तो होना ही है, बट ये पैटर्न हमने कहीं से देखा है, सुना है ना। नहीं तो ऐसा होता नहीं है, मतलब आप नहीं मानते एज अ कोच की क्या कहते हैं, हम जिनसे प्यार करते हैं हम उन्हीं से लड़ते हैं अपनी चीजों के लिए? सी लड़ाई एक डिफरेंट चीज हो गई, है ना, फाइट करना एक डिफरेंट चीज हो गया, बट जब भी हम रिलेशनशिप में होते हैं हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं, फिर हम उसको एक दूसरे को फुलफिल करने के लिए कि आपने नहीं किया, आप मुझे ये चाहिए था आपने ये नहीं दिया, सारी चीज़ें, उसकी वजह से वो एक लड़ाई होती है, ठीक है। तो नाराजगी एक अलग चीज हो गई, बट आप जो लड़ते हो, फाइट करते हो, आप एक ब्लेम गेम खेलते हो, माइंड गेम खेलते हो, दैट इज वेरी डिफरेंट थिंग, राइट। सो थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स, थोड़ी बहुत लड़ाई फाइटिंग चलती है रिलेशनशिप में, बट जो अब्यूजिव जो बहुत सारी चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं आपके पुराने पैटर्न से ही आता है, बिकॉज यू ग्रू अप विद दैट इन्वायरमेंट, वो आप सब देख के बड़े हुए हो, राइट। एंड दिस इज वेरी स्ट्रेंज थिंग कि हमें कहीं पे भी हमने रिलेशनशिप देखा ही नहीं है, ना ही हमने कहीं पे रिलेशनशिप के बारे में पढ़ाया गया है, राइट। फॉर एन एग्जाम्पल कि लेट सपोज कि मैं एक रिलेशनशिप में हूँ, मेरे रिलेशनशिप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं जनरली पीपल क्या करेंगे कि या तो खुद से बहुत ज्यादा ट्राई करेंगे, तो उस टाइम पे हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व तो कर ही नहीं सकते, बिकॉज हम दोनों ही काफी ज्यादा फाइट कर रहे हैं, हम दोनों ही एक इमोशनल सरफेस लेवल पे नहीं है, वीक हैं। तो लोग जनरली क्या करते हैं कि आसपास के दोस्तों से, अपनी फैमिली में भाई भाभी या किसी से भी वो बात करते हैं, उनको प्रॉब्लम शेयर करते हैं कि यार वो बताएंगे, बट क्या वो पर्सन जिससे भी हम पूछते हैं वो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए परफेक्ट है? नो, बिकॉज उन्होंने भी तो नहीं सीखा है ना, उन लोगों ने भी अपनी फैमिली में जो देखा है, जो अपने रिलेशनशिप में देखा है, उसके बेस्ड ऑन दैट एक्सपीरियंस वो आपको आंसर्स करेंगे, है ना। लेकिन इसका मतलब तो नहीं कि वो रिलेशनशिप के एक्सपर्ट हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं कि एक जो दो कपल्स के बीच की लड़ाई होती है, हम दो फैमिली के बीच की लड़ाई बना देते हैं। गर्ल्स अपनी साइड बात करेगी, बॉयज अपने साइड, एंड वो दोनों फैमिली के बीच की लड़ाई हो जाती है, फिर दोनों फैमिली में ईगो क्लैशेस और वो होते जाता है। हम कभी भी एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट के पास नहीं जाते हैं जो बिना पार्शियलिटी के आपको एक ट्रू ओपिनियन दे, है ना,
कि वो बिना किसी का पक्ष लिए, बिना इमोशनल अपने आप को इन्वेस्ट किए, वो एक क्लैरिटी के साथ आपको देखेगा कि हाँ प्रॉब्लम कहाँ पे है, और वो आपको गाइड कर सकता है। बट हमें कहीं पर हमने सीखा ही नहीं है, राइट। एंड ऑलवेज, जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि अगर मान के चलो कि कोई एक हेलीकॉप्टर फ्लाई करना चाहता है, ऑपरेट करना चाहता है, हमने उसको एक हेलीकॉप्टर दिया, एक पायलट गया, और थोड़ी देर के बाद वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, है ना। फिर हम पायलट आके हमें बोलता है कि हेलीकॉप्टर में कुछ प्रॉब्लम थी, हाँ, इसलिए मैं इसको ऑपरेट नहीं कर पाया। बोले ठीक है, हाँ, हमने आपको दूसरा दिया, हाँ, ठीक है, दूसरा भी क्रैश हुआ, फिर हमने तीसरा दिया, हाँ, तीसरा भी किया। तो एक पॉइंट पे हमें ये समझ आना चाहिए ना कि हेलीकॉप्टर में प्रॉब्लम नहीं है, कहीं ना कहीं पायलट में प्रॉब्लम है, राइट। एंड सेम थिंग अप्लाइज विथ रिलेशनशिप, है ना। कि एक आदमी का एक डाइवोर्स हुआ, अब वो बोला कि नहीं ये लाइक हस्बैंड में और वाइफ में प्रॉब्लम है, फिर वो दूसरी शादी करते हैं, है ना। उसके साथ भी कुछ दिनों के बाद फिर प्रॉब्लम्स, और फिर दूसरे के बाद फिर तीसरा, और यही चल रहा है अभी। तो हम खुद में नहीं देखते हैं कि यार कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से कोई भी रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मुझे खुद में जानने की जरूरत है, मुझे अपने इनसाइड इनर वर्क मुझे करने की जरूरत है, राइट। तो अपने अंदर झांकने के लिए लाइक जैसे एक एग्जांपल ये हो गया कि आपने बोला कि हम एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, तो हमारा एक्सपेक्टेशन रखना गलत है, हमें एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। नहीं, एक्सपेक्टेशन रखो आप, लेकिन जितना कम हो सके उतना, है ना। क्योंकि ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस, यस, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऑलवेज हर्ट, राइट। एंड अगर आप एक्सपेक्टेशन रख भी रहे हो तो आप उससे बहुत ज़्यादा अटैच मत रहो, राइट। एंड एक्सपेक्टेशंस पे अटैच वही होते हैं लाइक जो खुद में उनको खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट या खुद में वो हील्ड नहीं है, वो ऑलवेज दे आर चेजिंग एक्सटर्नल वैलिडेशंस, राइट। अगर हमारे खुद के अंदर ही वो सारी चीज़ें नहीं है तो हम उसको बाहर से फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। पर लेट्स से somebody who is externally, मतलब वैलिडेशन उसको नहीं चाहिए, इंटरनली वो इतना है, हील्ड है, सब कुछ है, तो फिर हाउ विल टू पीपल कोप अप, मतलब वो एक दूसरे में ढलेंगे कैसे, बिकॉज वो भी अपने आप में पूरा है, वो भी अपने आप में पूरा है, हाँ। तो फिर लाइक हाउ विल दिस बिकम अ कंप्लीट पैकेज टुगेदर, क्योंकि रिलेशनशिप इज आल्सो इम्पोर्टेंट, समवेयर और द अदर आई फील लाइक यू नीड अ पार्टनर, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग, राइट। हम अपने लाइफ के एरियाज में कितना भी कुछ कर लें, बट अगर हमारा रिलेशनशिप सही नहीं है तो हम शायद अधूरे हैं, राइट, बिकॉज वी ऑल आर डूइंग एवरीथिंग फॉर द रिलेशंस, राइट। एंड रिलेशन इज नॉट ओनली अबाउट द रोमांटिक रिलेशंस, बट कहीं ना कहीं हम अपने पेरेंट्स के साथ, ब्रदर, किसी ना किसी रिलेशंस के साथ ही कर रहे हैं हम, है ना। तो रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट जो आपने पूछा कि लाइक अगर दोनों लोग खुद में हील हैं तो वहाँ पे तो फिर कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, छोटे मोटे एक्सपेक्टेशंस होते हैं, और खुद में हील होने का मतलब कि यू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ अदर पर्सन्स, राइट। अगर आप खुद में हील हो दैट मीन्स आप खुद से कनेक्टेड हो, एंड आपके अंदर वो सारी चीजें हैं तो आप सामने वाले को वही दोगे जो उसको चाहिए ऑटोमेटिकली, राइट। अगर मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन, एंगर एंड जेलसी है तो मैं सामने वाले को भी वही दूंगा। बट मैं खुद में हील हूँ, मैं खुद में लाइक अबंडेंट हूँ, मैं खुद में मुझे जॉय है, पीस है ना, सेटिस्फैक्शन है, तो सामने वाले को भी मैं वही दूंगा, क्योंकि मैं चेज नहीं करूँगा, मैं गिवर हूँ, मैं टेकर नहीं हूँ। एंड वो वही सामने वाले को चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली वो साइकिल चलती रहती है, बैलेंस रहती है। Nice. तो अच्छा, अब I'll break it down, जो भी हमने बातें करी into small pieces. Let's say anyone who wants to start their journey with the self development and self identification, तो कैसे स्टार्ट करनी है, करनी कैसे, स्टेप्स क्या है उसके? सो कोई भी एम्बिशियस पर्सन है जो अपनी लाइफ को रिक्रिएट करना चाहते हैं, जहाँ भी है वो, जो भी अभी हो गया उसको छोड़ के आगे बढ़ना चाहता है, तो सबसे पहले उसको अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी स्टार्ट करनी है। उसके लिए वो या तो खुद से भी कर सकता है, इट्स ऑलवेज नॉट कि आपको मेंटोर ही चाहिए, बट मेंटोर ये है कि आपको आपके जो भी जर्नी है उसको शॉर्ट करके बताते हैं। लाइक आपको ये ट्राई नहीं करना है, टेस्ट एंड ट्रायल नहीं करना है, उनको सारे प्रूवन टेक्निक्स पता हैं, वो आपको बताएंगे। एंड ऑलवेज क्या होता है कि जैसे कि मैं खुद के ब्लाइंड स्पॉट्स मेरे क्या हैं, वो मैं खुद को स्पॉट्स नहीं कर सकता हूँ खुद से। मैं ब्लाइंड स्पॉट नहीं समझी, मतलब जैसे ब्लाइंड स्पॉट किसी का क्या होगा? ब्लाइंड स्पॉट्स का मतलब ये है कि लाइक हमारे खुद की जो कमियां हैं हम खुद से नहीं देख सकते उसको, राइट। मेरे पैटर्न्स क्या हैं, मेरे अंदर क्या कमी है, हमें तो हमेशा लगता है कि हम सही हैं, हम गलत भी कर रहे हैं तो हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं। तो यू नीड अ थर्ड पर्सन जो आपको उस चीज से देखे, है ना, आपको ये बताए।
एंड दैट्स द रीजन कि आज आप देखो विराट कोहली से भी अच्छा कोई प्लेयर नहीं है ना, महेंद्र सिंह धोनी से भी कोई अच्छा नहीं है, बट उन सबके पास मेंटोर है ना। तो वो आप किसी भी मेंटोर से एसोसिएट हो सकते हो एंड आप उनके पास जाके खुद की सेल्फ जर्नी को आप स्टार्ट कर सकते हो। इवन आप खुद अपने आप से भी स्टार्ट कर सकते हो। एंड द फर्स्ट स्टेप इज नोइंग योर सेल्फ, राइट, कि मैं क्या हूँ, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, मैं क्या बनना चाहता हूँ, मेरे गोल क्या हैं, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको पहले स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। वंस यू फाइंड योर गोल, फाइंड योर लाइक वाई, है ना, तो उसके बाद सारी चीज़ें फिर ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर्ड हो जाती हैं। लाइक कि मुझे मेरे गोल हैं, उसको मुझे ये करना है। एंड जो भी आपके गोल हैं, try to incorporate every actions in your daily habits because big results come with your daily habits, right? हम हमेशा ये वेट करते हैं कि एक दिन कुछ बड़ा होगा, हम बड़े रिजल्ट्स हमें मिल जाएंगे, बट हम सुबह से लेके शाम तक क्या करें उस पर हम ध्यान ही नहीं देते थे। तो कैसे चेंज होगा, है ना। एक बहुत फेमस कोट है कि लाइक डूइंग सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड एक्सपेक्टिंग द डिफरेंट रिजल्ट, दैट इज इंसैनिटी, राइट। तो वो वाली बात है। और लेट्स से anybody who is doing all of these things, right? जैसे आपने बोला कि हम अपने आप नई सारी चीज़ें, सारे पैटर्न्स रियलाइज नहीं कर सकते, तो वी नीड अ कोच फॉर दैट, है ना। बट मैंने कई केसेस में ये भी देखा है जैसे कि कोचेस के पास जाने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है ना। तो व्हाट विल यू से टू दोज पीपल हु हैव ऑलरेडी टेस्टेड, ट्राइड, वो किसी के पास गए हैं, किसी पे भरोसा करके भी देख चुके हैं। और मैं आपको सिर्फ ये कोचेस के टर्म्स में नहीं बता रही हूँ, लाइफ में भी वो बहुत लोगों पे भरोसा कर चुके हैं और कहीं ना कहीं अब डरते हैं कि नहीं अब नहीं हो पाएगा। तो वो मूव ऑन कैसे करना है कि फिर दोबारा वो कैसे आएगा वो एनर्जी की ठीक है एक बार और सही, एक बार और कोशिश करके देखते हैं। ये सेम चीज़ मैं खुद भी फेस कर चुका हूँ। आई थिंक यू जस्ट नेम इट एंड प्रोबेबली मतलब ऐसा ही संभवतः हो सकता है कि मैं उस पर्सन्स की या तो पॉडकास्ट नहीं देखी हो या उससे मैंने कांटेक्ट नहीं किया हो, राइट। मैंने भी बहुत कोचेस को ट्राई किया है, बहुत कोचेस के मैंने पेड क्लासेस लिए, सब कुछ किया है। लाइक द ओनली थिंग इज कि आप अपनी लाइफ को कितना डेस्परेटली चेंज करना चाहते हैं। आप अपनी इस करेंट लाइफ से आपकी जो डिजायर्ड लाइफ है उसमें जाने के लिए आप कितने ज़्यादा ईगर हैं, है ना। अगर आपका ये क्लियर है तो ठीक है, मैंने एक चीज़ ट्राई किया, वो काम नहीं किया, दूसरा चीज़ मैं ट्राई करूँगा। डोंट ऑलवेज सी इट लाइक अ फेलियर, और वो एक बिट्रे वाला कि चलो मैंने इस पे भरोसा किया और अब यहाँ पे नहीं हुआ, ठीक है। ऑलवेज सी कि ठीक है, एक जगह पे मुझे जाने के लिए 10 रास्ते थे, ठीक है, 10 रास्ते में मैंने 2 ट्राई किया, 2 ने काम नहीं किया, तो 8 अभी भी मेरे पास बचे हैं, राइट। तो मैं उसको ट्राई कर सकता हूँ, हो सकता है कि वो हो जाए। बट कई बार हम में इतनी एनर्जी भी नहीं होती, कई बार हम फाइनेंशियली भी इतने स्ट्रांग नहीं होते, तो उस केस में हम क्या करें, किस तरफ जाएं या कैसे अपने सवालों के जवाब ढूंढें? बिकॉज ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं करी या सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश नहीं करी, लोगों तक नहीं पहुंचे, बस हम सही लोगों तक नहीं पहुंच पाए ना। तो किसी सही इंसान की परख, क्योंकि आपने बहुत दरवाजे खटखटाए, मैं बोलूँगी, तो आपको आइडिया होगा कि किसी सही इंसान की परख कैसे करनी है, कैसे किसी के पास पहुंचना है जो आपको एक्चुअली समझा पाएगा, क्योंकि हर इंसान से रिलेट नहीं कर पाएगा, या हर इंसान के पास आपके सवालों के जवाब नहीं होंगे। तो कैसे करना है? तो इसका आंसर भी आप ही ने खुद दे दिया कि लाइक आपको ये देखना पड़ेगा कि आप किसके साथ अलाइंड हो रहे हो, आप किससे रिलेट कर रहे हो, है ना। अगर आप कोई भी कोचेस खराब नहीं है, मैं किसी को भी ब्लेम नहीं करूंगा, या कोई भी, हर एक कोच, हर एक मेंटोर अपने अपने फील्ड में अच्छे कर रहे हैं, सब कुछ है। द ओनली थिंग इज कि आप किससे ज्यादा रिलेट कर पा रहे हो, आप किसके साथ अलाइन कर रहे हो, किससे ज्यादा आप कनेक्टेड फील कर रहे हो। एंड यहाँ पे दूसरा रिजल्ट नहीं आने का कारण ये भी होता है कि हम क्या करते हैं कि जोश जोश में हम पेड तो कर देते हैं, ठीक है। मेरे पास भी बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं, या मैंने भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज लिए हैं कि मैंने उनको जस्ट एक इम्पल्सिव बाइंग करी, है ना। मैंने कोच के फी पे किए, पेड कोर्स ले लिया, एंड उसको मैंने कभी भी देखा ही नहीं, या देखा तो कभी भी उसमें जो भी इम्प्लीमेंटेबल एक्शंस हैं मैंने उसको लिया ही नहीं, ठीक है। और मैं बस कोच टू कोच बस जंप कर रहा हूँ और ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। सो यू नीड अ क्लैरिटी, लाइक आपको सरफेस लेवल पे नहीं, आपको डीप लेवल पे चाहिए क्लैरिटी। एंड इफ यू रियली वांट कि नहीं मुझे करना है, सो आप कर लोगे, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। और कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता है, जस्ट यू नीड टू ट्रस्ट, ठीक है।
कि आपको खुद पे भरोसा करना है और उस आदमी पे आपको सरेंडर करना है कि यस, इफ this person is sitting at another side, right, at these positions, so कुछ ना कुछ तो इन्होंने किया है, right? Just you need to trust the other and person. yes, the other person, and just take all those implementable actions, right? तभी आप रिजल्ट, क्योंकि कोई भी कोच आपको कुछ भी ऐसे बता नहीं सकते हैं या आपको सिखा नहीं सकते हैं जब तक कि आप उसमें खुद 100% ना दो, राइट? सेम क्लास में टीचर सेम होते हैं, स्कूल सेम होता है, कोई बच्चा फर्स्ट आता है, कोई फेल हो जाता है, तो इसमें स्कूल और टीचर्स की तो गलती होती नहीं है ना। तो वो बात है, अपनी ज़ील होती है, हमें कितना हम अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए हम एफर्ट डाल रहे हैं, दैट्स मैटर। बट कई केसेस में ना ओमकार, वन थिंग इज देयर, ऐसा नहीं है, मतलब आप कोर्सेज बैठ के पढ़ के सुन के ना, आई डोंट थिंक यू आर एबल टू गेट रिजल्ट्स। वो जो एक्सरसाइजेस आपको मिलती हैं वो शायद आपको करनी पड़ती हैं, एग्जैक्टली, तभी हो पाएगा। आप बिना मेंटोर के आप जस्ट बुक पढ़ के भी, आप बहुत सारी ऐसे, देयर आर सो मेनी सेल्फ हेल्प बुक कि आप उस बुक पढ़ के भी आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, और बहुत लोगों ने किया भी है ना। उसमें जो भी इम्प्लीमेंटेबल एक्शंस हैं उन्होंने लिया है, सब कुछ फॉलो कर रहे हैं विदाउट किसी को पुश किए हुए, है ना। किसी के और कोई किसी को चाहिए कि नहीं आपको बहुत ज्यादा पुश करना है, आपको बार बार पुश करना पड़ता है, बार बार मैसेजेस करने होते हैं, अकाउंटेबिलिटी चाहिए होती है उनको, है ना, कि कोई उनको अकाउंटेबल रखे। सो इट्स बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू वांट। अगर आप सुन के कर सकते हो तो आप कोई ऐसा कोर्स ले लो, अगर आपको चाहिए कि नहीं कोई 1-on-1 मुझे बिठा के पढ़ाए तो वैसे कर सकते हो, वैसे कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, गॉट इट। ऑल्सो बिकॉज आई वाज टॉकिंग अबाउट द राइट पर्सन, है ना, we didn't talk about the hurdles or the challenges of life that you've been facing, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप उस इंसान से ज़्यादा रिलेट कर पाओगे जिसकी स्टोरी आपसे कहीं ना कहीं मिलती जुलती हो, या जिसने कुछ ऐसा किया हो जो आपको करना हो। जैसे अगर मुझे पॉडकास्टिंग की नॉलेज लेनी है तो मैं चाहूँगी कि मैं किसी ऐसे बंदे के पास जाऊँ जिसने एक्चुअली पॉडकास्टिंग की हो, राइट, है ना। सो इन दैट केस आई वुड लव टू नो योर स्टोरी, आई वुड लव टू नो कि वॉट एवर द चैलेंजेस यू हैव फेस्ड, या फिर आपके पास किस किस टाइप के बच्चे आए हैं जिनकी प्रॉब्लम्स आपने फेस करी है। हाउ इज़ योर प्लान एन एक्शनेबल प्लान? हाउ कैन दीज पीपल रीच आउट टू यू, यू नो, किस किस केस में या किस किस सिचुएशन में ये लोग आपसे बात कर सकते हैं? So see, anyone who is suffering from some issues, some emotional trauma, some challenges in their life, right? मेरे पास हर टाइप के लोग हैं, लाइक कुछ हार्ट ब्रेक्स के हैं, कुछ ब्रेकअप्स के हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके एग्जाम्स की वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन टाइप काइंड ऑफ थिंग में चले गए हैं, जिसकी वजह से उनका जैसे वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था वो नहीं आया, तो उन्होंने लाइफ में गिव अप कर दिया कि नहीं अब तो कर ही नहीं सकते हैं। एंड कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जॉब नहीं हो रही है, उसकी वजह से वो रिजेक्शंस को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग अपनी लाइफ में, उनके ड्रीम्स तो हैं बट उनको पता ही नहीं कि स्ट्रक्चर्ड वे क्या है, मैं कैसे इसको पहुंच सकती हूँ, या इसको करने के लिए मुझे खुद में क्या चेंजेस लाना पड़ेगा। तो दिस ऑल टाइप ऑफ स्टूडेंट्स कैन कम एंड आई हेल्प देम, राइट, कि I help in every aspect of their life, whether it is relationship, career, or personal. So let's say anybody who watches this video, है ना, and they want a actionable plan in terms of improving their life, right? So what will be your actionable plan? Let's say even if they come to you or they don't come to you, they want to do it themselves. तो वो क्या ऐसा करें कि उनको ये लगने लगे कि अच्छा यहाँ से कुछ बदल जाएगा? मतलब maybe some books that you want to recommend, maybe some stories that you want to talk about, कि you know यहाँ से आप किसी चीज़ को शुरू कर सकते हो। ये पहला स्टेप है जो आप ले सकते हो, बिकॉज कहीं ना हम लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे साथ चल क्या रहा है, हमारे साथ हो क्या रहा है। इनफैक्ट मैं आपको ये तक बोलूँगी कि आप जो ये पूछ रहे हो कि आपको कहाँ जाना है, उस हिसाब से आपको अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करनी पड़ेगी। आई हैव सीन पीपल जिनको यही नहीं पता कि उनको जाना कहाँ तक है, पर्पस क्या है, पर्पस क्या है। नहीं मतलब सिंपल एग्जाम्पल ऑफ दिस कोचिंग में भी, जैसे कई लोगों को अपना नीश नहीं पता, ठीक है, और वो नीश के चक्कर में ऐसे बैठे हुए हैं कि मतलब ऑल ऑफ अ सडन कुछ होगा और पता चल जाएगा। जैसे आप बोल रहे हो कि आर्मी के लिए भी प्रिपेयर करना पड़ता है, तो मतलब मन बहुत चीज़ों में है, आती भी बहुत चीज़ें हैं, शायद पता भी बहुत चीज़ें हैं, पर नहीं हो पा रहा क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मतलब कहीं भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं, या वो पहला स्टेप क्या होना चाहिए, कैसे लेना चाहिए? सो पहला स्टेप वही है कि जस्ट आप खुद को टाइम दो, खुद के जो भी आपके इमोशंस हैं आप उसको प्रोसेस करो, एंड खुद को आप इतना टाइम अलाउ करो कि जहाँ पे आप
अकेले, विदाउट एनी फोन, विदाउट एनी पर्सन्स, आप बैठ के खुद को एक हार्ड क्वेश्चन पूछो कि लाइक मुझे लाइफ में करना क्या है, ठीक है। ये तो आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा। और अगर ना है इसका जवाब तो कब तक So- ऐसे बैठे रहे हैं? आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि दिस क्वेश्चन इज लाइक फर्स्ट स्टेप कि लाइक मुझे लाइफ में करना क्या है, या अभी मेरी करेंट सिचुएशंस क्या है, मुझे डिजायर्ड सिचुएशन मेरी जो है उसके बीच में क्या गैप्स हैं, उसके लिए मुझे क्या एक्शंस लेना है। तो ये क्वेश्चंस आपको करने ही पड़ेंगे, और तभी हम जाके फिर आगे की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। मान ठीक लो है। अगर मुझे एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं या- पता। या अगर जो भी आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, राइट, सी मैं बहुत लोगों के साथ बातें करता हूँ, कई बार हम ऑफलाइन वेबिनार करते हैं। उस वेबिनार में बहुत सारे लोग होते हैं जो क्लासेस में बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, उनको इंटरेस्ट भी आ रहा है, सब चीज़ वो समझ भी रहे हैं, बट वो कभी भी एक स्टेप आगे नहीं बढ़ते हैं। हाँ, ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में उनकी लाइफ में वो प्रॉब्लम नहीं है, वो रियलाइज नहीं कर रहे हैं अभी। द फर्स्ट स्टेप इज रियलाइजेशन। उनको Okay. रियलाइज ही नहीं है कि उनकी लाइफ क्या चल रही है, कहाँ जाना है, दे आर जस्ट लिविंग। तो उनका बस एक यही है कि जब तक भगवान या जब तक यूनिवर्स उनकी लाइफ में वो एक ठोकर नहीं लगता है, तब तक वो नहीं समझते हैं। कुछ लोग उसके पहले समझ जाते हैं, ठीक है। और ऑलरेडी जो लोग पेन में हैं, जो किसी ना किसी तरीके से किसी प्रॉब्लम में जूझ रहे हैं, तो वो ऑलरेडी उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए ट्राई करते हैं, और वो बहुत जल्दी समझ जाते हैं, और वो एक्शंस भी लेना स्टार्ट कर देते हैं। बट जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, वो तो उनको तो बस ऐसी ही सब लगती है कि क्या माइंडसेट की बात है, क्या डेली ये लिखना है, क्यों ये, क्या मतलब ये सब ऐसे ही टाइम पास है, मोटिवेशनल लाइनें क्यों बोल रहे हो, राइट। तो वो उनको हम कभी भी नहीं समझा सकते हैं जब तक वो खुद अपनी लाइफ को नहीं चेंज करना चाहते हैं, खुद से वो डिसीजन नहीं लेते हैं, ठीक है। तो द फर्स्ट थिंग इज कि अगर आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उससे आपको निकलना है, तो आपको क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने पड़ेंगे, एंड आपका आंसर जरूर मिलेगा। नहीं, मैं बस ये कहना चाह रही थी कि इन केस अगर मान लो मुझे एग्जैक्ट डिजायर्ड रिजल्ट अभी नहीं समझ आ रहा कि मुझे क्या चाहिए, मान लो मुझे सिर्फ एक सेक्टर में पता है कि मुझे इस प्रॉब्लम से अभी बाहर निकलना है, तो मैं वो पहला स्टेप लूंगी, तो आई थिंक आई हाँ, मूव विद द सेकंड, ऐसे मतलब Yes, कर्व yes. बनता जाएगा। यस, इट्स लाइक कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता है ना, हाँ, कि आपको लाइफ में करना क्या है, आपके डिजायर्ड गोल क्या है, कुछ भी नहीं पता, हाँ, तो जस्ट अभी जिस भी सिचुएशंस में है, जस्ट आप उससे बेटर करने की जो भी एट प्रेजेंट टाइम जब भी आपके माइंड में जो भी आइडियाज हैं, हाँ, जस्ट आप उसको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करो, ओके, ठीक है। जो भी आपके माइंड में अभी ओवर थिंकिंग हो रही है, जो भी आपके माइंड में अभी आइडियाज आ रहे हैं कि मुझे ये करना है, या अभी तो मेरा यही गोल है, तो आपको उसके लिए एक्शंस लेना स्टार्ट करना है। ठीक फिर है। उस एक स्टेप आप आगे बढ़ोगे तो मे भी आपको लगेगा कि नहीं यार, ये चीज़ मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, ये दिस इज नॉट द ओनली थिंग जो मैं चाहता हूँ, है ना। तो आप वहाँ पे अगेन चेंज कर सकते हो, जब तक कि आप खुद को एक आपका डिजायर्ड गोल ना मिल जाए, राइट। इट्स लाइक कि जैसे हम कहीं नाइट में ट्रैवल करते हैं, हमें यहाँ से अगर मुझे मुंबई जाना है, तो मुझे यहाँ से मुंबई का रास्ता तो नहीं दिख रहा है ना, हाँ, राइट। बट मैं क्या करता हूँ, जितना भी मेरी लाइट है कार की, लाइक इट्स से कि 1 किलोमीटर तक मुझे विजिबल है, तो मैं 1 किलोमीटर जाता हूँ, फिर वहां से आगे का रास्ता, वहां से आगे का रास्ता, ऐसे अपने आप मिलते जाता है। तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग एंड प्लानिंग एंड सब चीज फिगरिंग आउट कि अभी मुझे सब कुछ फिगर आउट करना है, एक बार मेरा सब कुछ प्लान बन जाए, सब मिल जाए, तब मैं स्टार्ट करूंगा, उससे अच्छा है कि जो भी अभी आपके माइंड में आइडियाज हैं, जो भी आपके माइंड में अभी प्लान है, जस्ट एग्जीक्यूट दैट। उसके बाद आगे का रास्ता आपको खुद पता चलेगा। और मान लो अगर हमें स्टेप ऐसे बीच में से कट करने हो, लाइक वी वांट टू जंप, है ना, मान लो मैं कमा रही हूँ 20,000 रुपए, पर मुझे कमाने अब 50 है, तो वो कैसे करना है, वो जंप कैसे लेनी है? तो जंप के लिए भी आपको स्ट्रैटेजी बनानी है, लाइक कि अगर मान के चलो मेरी 20,000 सैलरी है, मुझे 50 पे आए, तो आपको पहले ही देखना पड़ेगा कौन कौन सी ऐसी मार्केट में अभी स्किल्स हैं, हाँ, जो 50,000 पर मंथ आपको पे कर सकते हैं। आप जस्ट उसको लिस्ट डाउन करो, उसमें से आपको कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो आप कर सकते हो, एंड जस्ट उसमें आप खुद को मास्टर करो एंड अप्लाई फॉर दोस। काम करना पड़ेगा, मतलब काम, घूम फिर के काम देयर इज करना नो पड़ेगा। शॉर्टकट, राइट, देयर इज नो शॉर्टकट। ओमकार इज लाइक, यू डू द हार्ड क्वेश्चंस फर्स्ट एंड देन विल टॉक टू यू। आप पहले Yes. अपने लाइफ का उसूल निकालो। एंड ओमकार, एंडिंग ऑन दिस नोट वेयर आई वांट टू आस्क यू दिस कि लाइफ में ना इतने चैलेंजेस के लिए कभी किसी ने प्रिपेयर नहीं किया था, राइट। नोबडी न्यू कि यू नो बिकॉज ऑफ अ रिलेशनशिप और बिकॉज ऑफ अ फ्रेंडशिप, बिकॉज ऑफ दी स्मॉल स्मॉल थिंग्स की बॉस से लड़ाई हो जाएगी या ऑफिस में कुछ हो जाएगा, वी नेवर थॉट कि
वेज बदल जाएंगे लाइफ के, क्योंकि मैंने कई लोगों को बहुत इंस्टेंट क्विट करते हुए भी देखा है कि नहीं अब कॉर्पोरेट नहीं करना है, किसी के नीचे काम नहीं करना है ना। कुछ रिलेशनशिप्स की वजह से मैंने लाइफ में लोगों को बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से नीचे गिरते हुए भी देखा है ना। तो फेलियर्स, चैलेंजेस ये सब तो रहेंगे ही लाइफ में, Exactly. और बहुत कॉमन भी हैं। तो एनीबॉडी हु इज़ डीलिंग विद दीज चैलेंजेस अंदर ही अंदर है ना, जो शायद बाहर खुल के बोल नहीं पा रहा, या कह सकते हो कि उसको आइडिया तो है पर फिर भी वो उससे बाहर ही नहीं आ पा रहा। मतलब उसने कई बारी बात करने की भी कोशिश करी है, या कई बारी जो आप बोल रहे हो कि जर्नलिंग करना, लिखना, उसको पता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, बट स्टिल वो ना, कहते हैं ना डूबते को तिनके, वो तिनके का सहारा उसको नहीं मिल पा रहा है। तो व्हाट इज़ योर पीस ऑफ एडवाइस टू देम कि कैसे वो वहाँ से बाहर आए? जैसे आपने बोला कि कई बार हम अपनी लाइफ में प्लान करते हैं सारी हाँ। चीज़ें, है ना, और उसके हिसाब से वर्क नहीं नहीं करते। करते। दिस इज द लाइफ, राइट? सो एक कहावत है कि लाइक वी हैव टू प्लान फॉर अनप्लान थिंग, राइट? कि जो भी चीज़ें अनप्लान्ड है हमें ये मान के चलना है कि लाइफ हमारी, अगर सबकी लाइफ अपने प्लान से चलने लगी तो फिर किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। सो हमें उस अनप्लान चीज़ के लिए हमेशा प्रिपेयर रहना है खुद को। एंड अगर आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप साइलेंटली फेस कर रहे हो, काफ़ी उसमें फंसे हुए हो, तो आपको जस्ट किसी एक ऐसे आदमी को ढूंढना है जो आपकी बातों को समझे, सुने, या जिसने उस चीज़ को ओवरकम किया है एंड वो आपकी हेल्प कर सके। एंड यू कैन ट्रस्ट देम। आप अपनी प्रॉब्लम के साथ यू जस्ट सीक एक्सटर्नल हेल्प, राइट? अगर आपको डॉक्टर के पास जाना है आप डॉक्टर के पास जाओ, कोच के पास जाना है कोच के पास जाओ। जस्ट सीक एक्सटर्नल हेल्प, डोंट सप्रेस, बिकॉज अगर हम खुद के इमोशंस को प्रोसेस नहीं करेंगे तो एक दिन खुद हम बम की तरफ फटेंगे। एंड दैट पीपल आर लाइक कमिटिंग सुसाइड। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद पे करते करते, बिकॉज अंदर ही अंदर आपका माइंड डिटोरेट होते जाता है, ठीक है? आप अंदर ही अंदर उस चीज़ से परेशान हो रहे हो, और एक टाइम ऐसा आता है कि आपका बॉडी और माइंड बोलता है कि नहीं बस अब इससे ज़्यादा हम होल्ड नहीं कर सकते हैं। एंड वो पीपल फिर जाके कहीं ना कहीं पे फिर कुछ गलत रास्ते चूज़ करते हैं, राइट? या तो ड्रग्स, अल्कोहल, या तो फिर सुसाइड। सो डोंट सप्रेस योर इमोशंस, जस्ट सीक एक्सटर्नल वैलिडेशंस एंड प्रोसेस इट, एंड इट विल टेक टाइम। एंड इतनी नॉलेज होने के बाद आपके पास भी होता होगा ना कि अनएक्सपेक्टेड चीजें आ गई, बिकॉज लाइफ ऑलवेज है ना। ऑलवेज। तो हाउ डू यू सी देम, हाउ डू यू सी दिस प्रॉब्लम? सी लाइक अभी मैं उन प्रॉब्लम्स को ना एक थर्ड पर्सन की तरह देखता हूँ। पहले मैं क्या करता था कि मैं खुद में देखता था कि अरे अभी ऐसे में सब कुछ प्लान किया था, अब तो ऐसे हो ही नहीं रहा है। हाँ। अब तो एकदम सब कुछ हो गया। अभी कुछ दिन पहले मेरे साथ हुआ था लाइक कि अभी मैं गुड़गांव में जॉब करता हूँ, मेरी ट्रांसफ़र होगी हैदराबाद। मैंने इसके हिसाब से सब कुछ प्लान कर रखा था कि हाँ। यार ठीक है मुझे यहाँ पे ऐसे बिजनेस करना है, ये सब चीज़ करना है, यहाँ पे घर लेना, सब कुछ प्लान था। सडन मुझे हैदराबाद जाना था। उस दिन मुझे लगा कि यार सब कुछ ख़त्म हो गया, अब तो वहाँ से कुछ कर नहीं सकता हूँ। डिफरेंट पीपल, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट सब कुछ वहाँ पे है ना। बट द सेम थिंग कि अगर कई बार आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि अगर आपकी कोई फ्रेंड है, वो आके अपनी प्रॉब्लम्स बताते हो, आप उनको बहुत अच्छे से एडवाइस करते हो कि नहीं ये चीज़ नहीं है, ऐसे नहीं है, बट हम खुद की प्रॉब्लम में फंस जाते हैं बिकॉज हम वहाँ पे सब चीज़ों को इमोशनल डिसीजन ले रहे होते हैं, राइट? इमोशनल तरीके से हम सोच रहे होते हैं। तो अब मैं अपनी प्रॉब्लम्स को एक अपने आप से अटैच ना करके थोड़ा सा डिटैच करके उसको देखता हूँ कि ठीक है अभी ये सिनेरियो है और इसमें ये ऑप्शंस हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक है? सो अभी जॉब की भी बात हुई तो मैंने सोचा कि चलो अब सब कुछ खत्म हो गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है? मैंने उस दिन सबको फ़ोन करना स्टार्ट किया पैनिक में कि नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे अभी जॉब चाहिए। सो सबने बोला ठीक है ना। बट 5 मिनट के बाद मैंने खुद को फिर बोला कि यार मैं ही खुद पैनिक हो जाऊंगा तो फिर कैसे होगा, है ना? फिर मैं बैठा, मैंने फिर पेन और पेपर लिया, जस्ट मैंने सब कुछ लिखा पेज पे। जैसे ही मैंने सब कुछ लिखा 50% से ज़्यादा मेरी प्रॉब्लम्स वहीं पे फिगर आउट हो गई, ठीक है? और एक बोलते हैं ना कि अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स को एज इट इज़ लिख सकते हो तो 50 to 80% आपकी प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाती है, आपकी क्लैरिटी ऑलवेज आ जाती है। बिकॉज हमारा माइंड, हम सोचते हैं बहुत सारी चीज़ ओवर थिंक करके, जो चीज़ पॉसिबल भी नहीं है वो भी हम सोच के और वरीड होने लगते हैं, ठीक है? तो वो आपको एक क्लैरिटी आती है एंड उसके हिसाब से अब आप एक लॉजिक थिंकिंग करते हो, लॉजिक लगाते हो कि ठीक है ये सिचुएशंस है, इसमें ये हो सकता है। फिर मैंने सोचा कि लाइक दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ माई लाइफ, राइट? जॉब का जाना मेरे लिए वो नहीं है कि चलो एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट है, ठीक है? थिंग्स विल लाइक गेट स्लो, थोड़ा सा चीज़ें स्लो हो जाऊंगी, बट
मैं वहाँ पे जाके हो सकता है कि जॉब चेंज करके वापस आ जाऊँ, या हो सकता है कि मैं गुड़गांव से ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी मुझे हैदराबाद में मेरा वेट कर रही हो, राइट। सो हमें उस चीज़ को ऐसे देखना है, आप खुद से डिटैच करके उसको इमोशनली डिसीजन ना लेके आप देखो कि ठीक है, लाइक कि किसी और की स्टोरी है, अब इसमें मुझे डिसीजन लेना है। ये कुछ नया था जो मैंने भी सीखा आपसे. At the end, this is how I would like to end, but I'll give you the mic in case if you want to talk to the audience, in case if you want to talk to the camera, like about anything, any last piece of advice or anything special that you would have. Whatever the situation is, like किसी भी सिचुएशन में, किसी भी स्टेज पे आप लाइफ पे हो, यू कैन रीस्टार्ट योर लाइफ, राइट। देयर इज लाइक हम कभी भी पीछे नहीं होते हैं, कभी भी हमारा टाइम की नहीं मैं पीछे हूँ, मेरा पास टाइम नहीं है, मेरा तो एज इतना है, अब सब कुछ निकल गया है ना। सो यू कैन स्टार्ट योर लाइफ एट एनी स्टेज। कभी भी आप खुद को रीबिल्ड कर सकते हो, रिक्रिएट कर सकते हो, ठीक है। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल इन दिस वर्ल्ड, लाइक वॉरेन बफेट, KFC, मैकडोनाल्ड, किसी भी चीज़ की कोई लिमिटेशन नहीं होती है। लिमिटेशन सिर्फ एक चीज़ का होता है, हमारी माइंड का, राइट। वी ऑल आर लिमिटेड विद आवर माइंड्स, ठीक है। जितना ज़्यादा आप अपने माइंड को अपग्रेड करोगे, अपने माइंड को आप यूज़ करोगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी अपॉर्चुनिटी और उतना ज़्यादा आप बिग थिंग्स कर सकते हो, राइट। एंड वन लास्ट थिंग कि डिसिप्लिन ऑलवेज बीट्स मोटिवेशंस, राइट। जो हम चीज़ जो आपने बोला ना कि काम करना पड़ेगा, तो वो डिसिप्लिन तो होना ही पड़ेगा हमें, कभी ना कभी, एंड तभी रिजल्ट्स आएंगे। उससे नहीं भाग सकते हैं, उससे नहीं भाग सकते। एंड ओमकार ने वही बात बोल दी है कि करना तो आपको पड़ेगा ही. सो दैट्स हाउ आई वुड लाइक टू एंड इट. थैंक यू सो मच ओमकार, इट वाज लवली हैविंग यू. मतलब मुझे लगता है कि वो वाइब्रेशन और एनर्जी के साथ जो लोग देख रहे हैं वो एक्चुअली अप्लाई करना शुरू कर दे तो उससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता. But I'll still drop down Omkar's profile links and everything in the description in case if you have any questions you can directly reach him out, because I feel like he after reaching to so many coaches और after talking to so many people उन्होंने खुद वो जर्नी देखी है, उन्होंने खुद वो स्ट्रगल देखी है. So he's the right person to get in touch with and I am pretty sure कि वो आपको किसी और डायरेक्शन में लेके उसी डायरेक्शन में लेके जाएंगे जहाँ पे आप जाना चाहते हो. So that's how I would like to end it. Thank you everyone for watching. Bye. Take care.